My name is Samina Mishra, and I'm not from radio. Although I just remembered outside while I was talking to the panelists that I did kind of put my little toe in radio, because when I was in college, all of us used to go to All India Radio and try and earn some extra pocket money by doing programs for Yuvavani. So yes, I have some links to radio. But I'm here more because I'm interested and my work, I'm a documentary filmmaker and a writer, and I do a lot of work around children and the arts. And I'm here because I'm interested in the ideas of storytelling and social change, which is what this panel is about. Now, radio in India, of course, the history of radio is that from its inception, it's actually been about social change. It was set up as a medium for social change. So in some ways, it's intrinsically connected to that idea. But I think the history of radio also tells us that, you know, there are, how do we imagine that social change, and how is it an instrument of disseminating information, or are there ways in which we can engage with the audience, allow for different kinds of expression, and make it into something which reflects on the world and therefore brings about change? So these are questions that I hope will come up in the panel. We have a very exciting panel. Let me begin by introducing Neelam. So Neelam is an old AIR hand, yeah? And she's currently with the international division, but she used to be with FM Gold. But what's probably lesser known is that she has an MPhil in social work. So that makes her a perfect fit for this panel. She's hosted the much acclaimed Hindi retro night show, Purani Jeans. Unfortunately, that closed down in April 2017. But it used to be on the #1 position for 14 years. She now hosts a show called Meethi Mirchi that plays contemporary melody. She's also pioneered a show called Ek Purani Kahani and brought to listeners the work of Saadat Hasan Manto. She's got a huge fan following, and in today's world of social media, it would be important to point out that she has almost more than 7.5 lakh followers on Twitter alone. मेरा नाम राधा शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर के एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से हूँ, वक्त की आवाज़ 91.2 FM से, और मैं पिछले 5 साल से लगातार काम कर रही हूँ उस कम्युनिटी में। वैसे मेरा जो है हेल्थ में काफ़ी एक्सपर्टी रहा, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में मस्त प्रोग्राम मेरा है, और मैं बहुत अच्छे से कम्युनिटी को जानने की कोशिश करती हूँ। So it was a horror show called Ek Kahani Aisi Bhi. And now he's based in Kolkata, and he tickles Kolkata's funny bone with Morning #1, a breakfast show, and Aram Zada Weekend, yeah, which is a stand-up comedy show, yeah. And finally, we have Sharad, and I'm going to say this, Bhata Tripad. Did I say it correctly? अरे मैं आपको माइक दूंगी, पहले मैं ये सारा पढ़ लूँ. So Sharad is an award-winning radio professional with work experience of over a decade and a half. He currently heads content for Fever 104 FM as well as 107.2 FM Radio Nasha. And he also hosts an early morning show called Soul Yatra as life coach Sharad. मेरा नाम तो सिंपल है, भट्टा राय की तरह नहीं है। नीलम मलकानिया। मैं ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग से हूँ, एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न, और हम इंडियन डायस्पोरा के लिए ब्रॉडकास्ट करते हैं जो इंडिया से बाहर है फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस। मेनली हम लोग इंडियन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसीज़ को कवर करते हैं, और गवर्नमेंट के जो एक इंडियन इमेज को जो प्रोजेक्ट करना है बाहर जो लोग हैं, और अपने कल्चर को जो प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रोग्राम्स। हमारा ज़्यादातर फोकस जो रहता है उस पर रहता है, करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पर हैं, और क्योंकि इंडिया से बाहर हम लोग फोकस करते हैं तो विद इन इंडिया बहुत कम लोग हमें सुन पाते हैं, बहुत बॉर्डर रीजन पर कहीं सुन पाते हैं। अभी जो है वो वेबसाइट की वजह से थोड़ा बहुत पता है लोगों को कि ESD भी एक सेक्शन है। हालांकि हम लोग पूरी दुनिया में हमारा सबसे बड़ा एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न है, क्योंकि हम
पूरी दुनिया में कोई भी रेडियो स्टेशन इतनी ज़्यादा लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट नहीं करता है जो ऑल इंडिया रेडियो का ESD डिवीज़न करता है। हमारी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी इंडियन लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस में। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है सोशल चेंज थ्रू स्टोरी टेलिंग। ब्रॉडकास्ट में सबसे पहले तो हमें ये सिखाया जाता है कि कोई भी बात अगर दिल तक नहीं पहुंची तो वो बेकार हो गई, क्योंकि कानों तक तो नारेबाजी भी पहुंचती है। तो कानों तक तो बहुत सारे शब्द आप तक पहुंचेंगे, लेकिन जो बात आप चाहते हैं कि दूसरे के दिल पर असर करे, तो सबसे पहले आपको वो तरीका अपनाना होगा कि वो दूसरे के दिल तक पहुंचे। और सही तरीके से कही गई हर बात में ताकत होती है। वो पहले दिल पर असर करती है और बाद में दिल बहुत कुछ बदल सकता है। कहानी के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ न कहते हुए कुछ कहना कहानी की अदा है। जो हमारे कुछ यंगस्टर्स यहाँ पर हैं वो जान सकते हैं, लेटेस्ट सेंसेशन जो है कहानी जो है उसको आप प्रिया प्रकाश समझ सकते हैं। तो कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह देना, क्योंकि सीधे सपाट शब्दों में अगर कोई बात कही जाए, अगर हम सोशल चेंजेस की बात करते हैं, मैं जो समझती हूँ कि सीधे सपाट शब्दों में तो हम ऐसे राइटिंग में बहुत कुछ कह सकते हैं, डिबेट में हम कह सकते हैं, या जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा मीडियम है डॉक्यूमेंट्री में हम कह सकते हैं। लेकिन कहानी के थ्रू कुछ कहना वो बहुत बड़ा एक चैलेंज भी होता है, बहुत मज़ेदार भी है। अब ये आपकी कलाकारी है कि आप किस सोशल इशू को उठाते हैं, किस तरह से अलग अलग तबकों को, समाज के अलग अलग हिस्सों को उससे जोड़ते हैं, और कैसे जो घटनाएं हैं कहानी की वो कैसे आगे बढ़ते हुए वो बात कह जाती हैं जो आप कहना चाहते हैं। यहाँ FM गोल्ड से एक प्रोग्राम हमारा प्रसारित होता था, गलती किसकी, उसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। किरण बेदी जी की एक किताब है व्हाट वेंट रॉन्ग, उस पर ये कार्यक्रम आधारित था। किसी भी वजह से हालात किसी के साथ जब ऐसे हो जाते हैं कि वो विक्टिम बन जाता है और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतता है, आइसोलेटेड हो जाता है सोसाइटी से, उन लोगों की बात इस कार्यक्रम ने रखी थी। हमें जो रिस्पांस मिला उसके बाद जो हमें बताया गया वो ये कि बहुत सारे लोगों ने ये कन्फेस किया कि जो भी विक्टिम्स हमने इस कहानी के माध्यम से सुने, पहले हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन रेडियो पर ये प्रोग्राम सुनने के बाद हम ये जान पाए कि उनका पर्सपेक्शन क्या था, उनका ये जो हालात थे वो क्या थे, और किसी भी परेशानी के अगर वो शिकार हुए, कोई केस या कुछ भी हुआ, उसके बाद उनको मेन स्ट्रीम में आने में कितनी दिक्कत हुई। कि एक जो ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है ना कई बार समाज में, सोसाइटी में, कहानी और कहानी के थ्रू दिया गया सही मैसेज उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम कर सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल चेंज है, जब समाज का एक तबका दूसरे पर भरोसा करने लगे और आप डायरेक्ट ये बात नहीं कह रहे हैं। हम इंटरडिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है और जो ऑल इंडिया रेडियो का कॉन्सेप्ट है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट की बात हमें करनी है और हमारे काम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। इंफोटेनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जितनी भी लिटरेचर की चीज़ें हैं ना, उनमें कहानी सबसे ज़्यादा उसको जस्टिफाई कर सकती है। एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन। तो जितने भी सोशल चेंजेस की बात हम करते हैं, चाहे वो वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो, ईविटीजिंग की बुराई हम लोगों के सामने रखें, या हम ये बताएं कि किस तरह से जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे पास, वाटर कंजर्वेशन हो, लेकिन उसको हम पोस्टर ना बना दें और कहानी के माध्यम से कैसे कहा जाए, उसके बहुत बहुत सारे तरीके हैं उसके। पर्सनली मुझे ये लगता है कि कहानी सबसे खूबसूरत तरीका है सोशल मैसेज देने का किसी को। पहले बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, जब उनके चेहरे मेरे सामने होते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि कितनी सारी कहानियाँ मेरे सामने बैठी हुई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। स्टोरी टेलिंग मुझे ऐसा लगता है बचपन से, जब हमारी नानी दादी हमें कुछ समझाना चाहती थी तो वो डांटती नहीं थी, वो उसके इर्द गिर्द एक कहानी सोचती थी और हमें कहानी की तरह समझाती थी। मुझे लगता है ज़िंदगी में हमने बचपन से सीखा है कि किसी भी चीज़ को अगर कोई प्रीची वे में प्रेजेंट करे तो सबसे पहले हम उसको हम डिफाइंड हो जाते हैं, हमें नहीं सुनना, तुम कौन होते हो बताने वाले, ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं। मगर जब वो एक कहानी बनती है तो हम बड़े
बहुत चाव से उसको सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टोरी टेलिंग एक ट्रैप है, और बड़ा प्यारा सा ट्रैप है, बहुत मासूम सा ट्रैप है। जहाँ तक सोशल चेंज की बात है या एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज की बात है, मैंने एक्चुअली पर्सनली कभी उसको उस तरह से लिया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हम जब समाज को बदलने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ख़ुद को बदलना होता है, और ख़ुद के अंदर वो खामियां देखना, वो लिमिटेशंस देखना, उनको पहचानना, और फिर उस चीज़ को टारगेट करना। जब हम खुद बदलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास भी चीज़ें बदल रही हैं। अब वो हमारी खुशफहमी होती है कि वो एक इमेजिनेशन होती है, ये नहीं मुझे पता। जब मैंने रेडियो मिर्ची पे स्टोरी टेलिंग की, मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नीलेश जी भी स्टोरी टेलिंग करते थे, रेड एफएम पे भी स्टोरी टेलिंग होती थी, तो मैं ऐसा क्या करूं जो डिफरेंट हो। और तब मेरे सामने वो सवाल था कि मैं क्या करूंगी जो कि डिफरेंट होगा, और सामने आ गए सादत हसन मंटो। मंटो एक ऐसा नाम जो जिनको पता है उनको बहुत अच्छे से पता है, और बाकियों को बिल्कुल नहीं पता। मंटो मैंने क्यों चुना? मंटो मैंने इसलिए चुना क्योंकि हम जिस दौर में रहते हैं उस दौर में इनटॉलरेंस कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। ये वो दौर है जहाँ पे बांटने की बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं आसपास। एक बार फिर से हम उस दौर में चले गए हैं जहाँ मज़हब सामने आ गया है, किसी की जाति सामने आ गई है, उसके सारे भेदभाव की छोटी छोटी चीज़ें खुल गई। हमारे अंदर का जो शैतान है ना, वो जाग रहा था, जाग रहा है, और इसलिए एक आईना ज़रूरी था, एक आईना ज़रूरी है जहाँ पे हम खुद को देख पाएँ कि हम इंसान से जानवर कैसे बनते जा रहे हैं। वो आईना किसी को दिखाना था। मंटो ने वो आईना बना दिया है, मगर हम उसको सामने लाना नहीं चाहते, क्योंकि जब हम उसमें खुद को देखते हैं तो जो हमें दिखता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैंने चैलेंज यही किया था कि मंटो, ये मत सोचिए कि एक राइटर है, ये मत सोचिए कि उसने कहानियाँ लिखी, वो एक आईना है। उस आईने में जब आप खुद को देखेंगे तो आपको अपनी बदसूरती दिखेगी उसमें। क्या करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, आप आईने को तोड़ देंगे तो आपके अंदर से बदसूरती निकल जाएगी? आप आईना देखिए और देखते जाइए, हो सकता है आप बदल जाएं और आपको कुछ अच्छा दिखने लगे। और इसलिए मंटो की कहानियाँ हमने रेडियो पे करनी शुरू की। मेरा कंडीशन जो था मेरे बॉसेस से वो ये था कि जब मैं मंटो की कहानी पढ़ूंगी तो मैं उसमें से एक लफ्ज़ भी नहीं बदलूंगी। जैसा उन्होंने लिखा है, जितना नंगा लिखा है, जितना जिंदा लिखा है, जितना मरा हुआ लिखा है, मैं बिल्कुल उसको वैसे ही पढ़ूंगी। अगर आप तैयार हैं तो चलते हैं, और अगर नहीं तैयार हैं तो हम नहीं करेंगे। ये हमें पता था कि मंटो की कहानियाँ समझाना आसान नहीं है। जब आप उस कहानी को पढ़ते हैं तो या तो आप उस किताब को दरकिनार रख देते हैं, कहते हैं क्या लिखा है यार, क्या है, इसका क्या मतलब था। उस वक्त तो ये रिएक्शन होता है। 3 दिन बाद आपको उसमें से एक कड़ी समझ में आती है कि इसका ये मतलब था क्या, और आप उठ के बैठ जाते हैं और आप कहते हैं यार, मतलब ऐसा तो मैं भी सोचता हूँ। और फिर आपको मंटो अपने पास बुलाता है। वो मंटो का एक कोट है ना कि मैं इस समाज को चोली क्यों पहनाऊँ जो पहले से ही नंगी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, समाज को खुद को ढकना है तो वो ढक ले, क्योंकि मैं तो वो लिखूंगा जो मैं देखता हूँ। तो जब मंटो की कहानियाँ मैंने पढ़नी शुरू की तो शुरू में एक सन्नाटा था, एक साइलेंस था, और समझ में आता था कि वो साइलेंस नहीं है, वो अंदर से कुछ चुभता है, चर्निंग होती है। जैसे मंटो की कहानी है बांझ, और मैं क्या करती थी, मैं कहानी रेडियो पे सुनाने के बाद एक सवाल पूछती थी, जिस सवाल के बदले आपको मंटो का दस्तावेज मिलेगा। मगर वो सवाल बहुत मुश्किल होता था। वो सवाल ऐसा नहीं होता था कि मुगल आजम में कौन सी हीरोइन थी, मधुबाला, कटरीना कैफ या फिर प्रियंका चोपड़ा। ऐसा सवाल नहीं होता था। बांझ कहानी के बाद, बांझ में एक लाइन मंटो की है कि जिस तरह से कुछ औरतें बच्चे पैदा करना चाहती हैं मगर अपनी जिस्मानी कमी की वजह से वो बच्चा नहीं पैदा कर पाती और समाज उन्हें बांझ कहते हैं, उसी तरह से कुछ मर्द ऐसे होते हैं
जो मोहब्बत में बांझ होते हैं। वो मोहब्बत करना तो चाहते हैं मगर उनसे हो नहीं पाती। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बांझ होता है। मेरा सवाल ये था कि मुझे ये बताइए कि आप किस चीज़ में बांझ हैं। मेरा ये सवाल था और मैंने बोला था कि आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मेरी टाइमलाइन पे मत लिखिएगा। मगर आज मैं चाहती हूँ कि आप देखें अपने अंदर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बड़ा आप करना चाहते हैं मगर हो नहीं पाती आपसे। बहुत सारे पढ़े लिखे सो कॉल्ड एकेडमिशियंस उन्होंने लिखा कि वी आर शॉक्ड कि मंटो ने बांझ जैसा वर्ड इस्तेमाल किया। मैंने कहा सर आई एम ग्लैड दैट यू आर शॉक्ड, क्योंकि उसने इस्तेमाल ही इसलिए किया था कि आपको भी चुभे, आपको वो दर्द महसूस हो। इतने जवाब आए क्योंकि उस दिन शायद लोगों ने सिर्फ यही सोचा कि हम किस चीज़ में बांझ हैं। और मुझे ये पता था कि वो मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें वो दस्तावेज चाहिए, वो आज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। और वो एक चीज़ होती है जहाँ पे आप मूव करते हैं बियॉन्ड व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑफ यू। आप खुद से जुड़ते हैं, आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को वैसा देखते हैं जैसे आप हैं। और अगर ये मकसद पूरा नहीं हुआ तो वैसी कहानियाँ तो हम किताबों में भी पढ़ सकते हैं, फिल्मों में भी देख सकते हैं जो ख्वाबों को जोड़ती हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से हकीकत में कुछ झंझोड़ने की ज़रूरत है। और इसलिए आप मुझे गाली दें कि मैंने इतनी अश्लील कहानी बू क्यों पढ़ी रेडियो पे, मगर गाली के बाद 1 महीने बाद शायद आपको एहसास होगा कि मैंने वो कहानी क्यों पढ़ी। और उसके बाद जितना लोगों ने मंटो को अपने करीब रखना शुरू किया है, सिर्फ उतनी ही उम्मीद। एक इंसान का ही ये कहना कि क्यों हम ऐसे सोचते हैं, एक इंसान को इंसान की तरह क्यों नहीं सोचते। एक इंसान का मुझे सिर्फ इतना कहना कि साइमा, आज से पहले मैं सच बता रहा हूँ कि मैं आज से पहले नहीं जाता था एक दूसरे मज़हब के घर, क्योंकि वो मांस खाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। सिर्फ कहना। लेकिन अब मैं जाऊंगा क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर गंदगी है, उस घर में नहीं, उस घर से कहीं ज़्यादा गंदगी मेरे अंदर है। तो अब मैं जाऊंगा, बैठूंगा। सिर्फ इतना कहना, एक इंसान का कहना, और मेरे पूरे सीरीज की जीत थी। तो मकसद, जिस मकसद से आपने वो करना शुरू किया, अगर आपने वो हल्का सा भी टच कर दिया, एक सोच भी आ गई। और सिर्फ रेडियो वो मीडियम है जो एक्चुअली इसको बिल्कुल उस तरह से कर सकता है जिस तरह से हम उसको विजुअलाइज करते हैं। वो सारी चीज़ें जो लोग समझते हैं रेडियो का डिसएडवांटेज है, यानी कि हम दिखते नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखती, हमारे एक्सप्रेशंस, ये रेडियो का डिसएडवांटेज नहीं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रेडियो का। क्योंकि एक ऐसी दुनिया, हम सब सोचते हैं एक ऐसी दुनिया होती जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता यार कि जो दूसरा इंसान है, जो हमारा दोस्त है, वो दिखता कैसा है, उसका मज़हब कैसा है, वो अमीर है, गरीब है, उसका पास्ट है, हम उसको जज ना करते। हम सबको एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो हमें जज ना करे। वो सिर्फ और सिर्फ रेडियो पे पॉसिबल है। कम्युनिटी रेडियो की अगर स्टोरी की चेंज की बात करूं तो कहानी कुछ और कहती है। कहानी ये कहती है कि जब हम कम्युनिटी को जाने बिना उसको कौन सा लोकेशन में है, वो कहानी क्या कह रही है और उसके सामने हमें क्या रखना है। अगर हम चेंज की बात करेंगे तो मुझे उनके बीच जाना होगा, मुझे उन्हें समझना होगा कि आखिर वो चाहते क्या हैं, और शायद उनसे मुझे सीखना होगा कि हम क्या उनको देंगे जो उनके जीवन में एक परिवर्तन की बात करे।
तो इसमें से मैंने एक स्टोरी लिखी थी। बहुत बड़ी बात होती है कि जब लड़कियों को माहवारी होती है तो हमारे यहाँ कभी बात नहीं की जाती, और मुझे इस चुप्पी को ख़त्म करना था। मैंने बहुत सारे जो ओल्ड एज जो 40 से 50 के बीच में थी, जिनका मेनोपॉज का टाइम चल रहा था, मैंने पूछा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब उनसे मैंने जान लिया तो मुझे लगा कि एक कहानी ऐसी होनी चाहिए कि इनके पास आए, इन्हें लगना चाहिए, जैसे अभी हमारे और साथियों ने बात की कि हमें छू जानी चाहिए कहानी। तो अगर इस पर बात करनी है कम्युनिटी रेडियो में और ऐसे गाँव में, क्योंकि मैं कानपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गाँव में काम करती हूँ, तो उन गाँव में मुझे ये समझना था कि अगर इनकी चुप्पी तोड़नी है थ्रू कहानी, तो वो कैसे बदलाव आए। उसके लिए मैंने एक कहानी चुनी और उस कहानी का नाम रखा था जब फ्राक हुई लाल। तो ये जो शब्द है ना कि जब कहानी हुई, जब फ्राक हुई लाल, तो ये सबके अंदर एक चुभना शुरू हुआ। इतनी फ़ोन कॉल्स आई, लोगों ने अपनी इतनी स्टोरी शेयर की हमारे साथ कि सबको अपना दिन याद आया और उनके साथ क्या क्या हुआ था वो उन्होंने हमें शेयर किया। उससे हम अब आगे उन लोगों का सोचना ये हुआ कि अगर ऐसी कहानी हमको मिल रही है तो अब चेंज आना चाहिए। मतलब अब हम लड़कियों को बोलेंगे, जो हमने सहा हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियां सहें। तो यही हमें पॉइंट चाहिए था अपनी कहानी में कि कैसे एक बदलाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और उन लोगों ने चुप्पी तोड़ी और बाहर आए। तो एक तो वो थी कि वो घटना उनके साथ क्या क्या हुआ। मैं अगर कहती कि क्या हुआ बताओ तो उनको लगता कि एक दिक्कत है, लेकिन जब उनके एक सर्च के साथ एक कहानी उनके साथ पेश हुई, क्योंकि लड़कियों का उस दिन से फ्रॉक पहनना बंद हो जाता है, तो क्या क्या घटना हुई उस घटना को पिरोना और उसके बाद उस कहानी को लेकर के आज ये है कि वक्त की आवाज़ में भाई लोग, पिता लोग अपनी बेटियों को लेकर के वक्त की आवाज़ में आते हैं। और 28 मई को हम पूरी तरह माहवारी दिवस मनाते हैं और वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स का भी पूरा वितरण करते हैं। तो अगर चेंज की बात कर रहे हैं तो उनके बीच से निकली हुई बात जब हम करते हैं कि वास्तव में हमारी कहानी कहती क्या है। Return to the gentleman, Ravi. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब बड़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके लिए बेहद शुक्रिया। मेरा नाम प्रवीण है, मैं कोलकाता रेड एफएम में काम कर रहा हूँ पिछले 12 सालों से। और मैं अगर मैं जाति धर्म की बात करूँ तो मैं मारवाड़ी हूँ, और मारवाड़ी 12 साल रेडियो में रह गया, बिजनेस नहीं कर रहा। इससे बड़ी कहानी और क्या हो सकती है। सो बड़े देर से लोग बैठे हुए थे। मैं स्टोरी टेलिंग और उसके सोशल इम्पैक्ट इन सब चीज़ों पर आऊँगा, बट मैं आपको बता दूं कि मैं 31 साल का हो गया हूँ। झूठ कह रहा हूँ, मैं 32 का हूँ, ठीक है। मैंने शादी अभी तक नहीं करी, खुद को बचा के रखा है। बहुत सारे लोग जेलस फील करेंगे ये सुन करके, बट नेवरदलेस मारवाड़ी लड़के की एक मारवाड़ी गर्लफ्रेंड भी बनी। उसने कहा रात के 2 बजे मैं सिक्का फेंकूंगी, सड़क पे आवाज़ आएगी तो सुन लेना कि वक्त हो गया, तुम आ सकते हो। उसने रात के 2 बजे सिक्का फेंका, सड़क पे आवाज़ हुई, लेकिन मैं पहुंचा 3 बजे। क्यों? मारवाड़ी होना, वो एक का सिक्का ढूंढ के जा रहा था। अगर आपको लगता है कि कहानी इतने में खत्म हो गई तो कहानी यहां खत्म नहीं हुई, इसका इंपैक्ट अभी आना बाकी है। जब मैं 3 बजे उसके घर पहुंचा, उसने कहा 3 बजे क्यों आए? मैंने कहा वो सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की ने कहा तुम पागल हो, मैं खुद मारवाड़ी हूं। मैंने भी रस्सी लगा के फेंका था, वापस खींच लिया। अब मैं रेडियो के जरिए कहानियों की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से ना रेडियो सबसे इजीएस्ट मीडियम है हम सब के लिए। अगर आप किसी सोशल इश्यू पर फिल्म बनाना चाहते हैं, कितना वक्त लगेगा? बहुत वक्त लगेगा। अगर आप किसी सोशल इश्यू को टेलीविजन पर दिखाना चाहते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीच। आपको लगता है कि भारत के हर कोने में वो पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? रेडियो पहुंचेगा। और कहते हैं कि जो रेडियो जॉकीज की आवाज होती है वो दिल तक पहुंचती है, दिल के कोने तक जाकर के लगती है। तो उस रेडियो का इस्तेमाल अगर किसी सोशल चेंज के लिए मैं करूं तो उसके लिए मुझे कितना वक्त लगेगा? वही कुछ 2 मिनट, वही कुछ 2 मिनट। एक पेपर लिया, दिमाग में जो थॉट आया उसको मैंने पेपर पे लिख डाला, और उसके बाद में पीछे एक ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया जिसपे बात करने में रेडियो जॉकी को भी अच्छा फील हो, उसको लगे कि वो कुछ सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब तक पहले मेरा दिमाग में नहीं होगा दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज, मैं उस चीज को रेडियो पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। सो मेरे ख्याल से रेडियो सबसे स्ट्रांग मीडियम है। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं अपने थॉट्स को पेपर पे लिखने में। तो मैं यहां पर ना
क्या हो सकता है क्या नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपको छोटे से 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे पास में एक चिट्ठी आई थी हमारे रेडियो स्टेशन में। 12 साल की एक लड़की ने चिट्ठी भेजी थी। राधा जी ने जो कहा ठीक उसी सब्जेक्ट पर हमारे पास में एक चिट्ठी आई थी। वो चिट्ठी मैंने रेडियो पर पढ़ी थी। अगर वो प्ले कर पाए, कैन आई जस्ट प्ले मैम? ओपन लेटर आया, डियर रेड एफएम, सुना है रेडियो में बहुत पावर होती है। जो मैं किसी से इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारे पास एक ओपन लेटर आया, डियर रेड एफएम, सुना है रेडियो में बहुत पावर होती है। जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाई, आपको आज लिखकर बता रही हूं। लास्ट नवंबर से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। हर महीने में 4-5 दिन के लिए मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाने देती। पिछले महीने इस कारण मेरे एग्जाम्स भी मिस हो गए थे। कभी कभी लगता है कि अच्छा है स्कूल नहीं जाती, क्योंकि वहां जाऊंगी तो बाकी के क्लासमेट्स को पता चल जाएगा और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, जैसे मैं खुद उड़ाती थी, क्योंकि मैं इससे अनजान थी। मैं ये चिट्ठी आपको इसलिए लिख रही हूं क्योंकि उन दिनों ऊपर वाला भी मेरी बात नहीं सुनता। माँ कहती है कि वो 4-5 दिन मंदिर जाना पाप है। बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है मुझे और कहीं बैठने में भी झिझक आती है। मैंने टीवी पर देखा है इसका सॉल्यूशन, इनफैक्ट माँ के साथ ही देखा है, पर पता नहीं क्यों वो ऐसे नए तौर तरीकों पर विश्वास नहीं करती है। पता नहीं ये चिट्ठी मेरी पढ़ी भी जाएगी या नहीं, पर लिखकर मन हल्का हो गया है। रेड एफएम जो है वो मेरा फेवरेट रेडियो स्टेशन है ना, इसलिए। सो एक चिट्ठी हमारे पास में आती है, उसे हम ऑन एयर रेडियो पर उस चिट्ठी को जैसा हमारे पास में आई थी वैसे ही हमने पढ़ करके उसे सुनाया। एंड इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला, हमने रिसर्च करना स्टार्ट करा। आज भी भारत में 85%, 85 अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया हो तो 85%। भारत में आज भी 85% महिलाएं ऐसी हैं जो पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? इसकी शुरुआत उस समय से होनी चाहिए जब पहली बार आप इससे गुजरते हैं। तो हमने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में जाकर के क्लासेस शुरू करवाएं और सिर्फ एजुकेट नहीं करा, हमने हमारी तरफ से, रेड एफएम ने अपनी तरफ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके हमने 50 गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स लगाए, जहां पर लड़कियों को 10 का सिक्का डाल के 3 सैनिटरी पैड्स मिल सकते हैं। हमने उनको एजुकेट किया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ रेडियो पर हमने अपनी तरफ से 50 स्कूल्स किए, लेकिन जब रेडियो पर ये एक्टिविटी हम कर रहे थे तो हमारे पास में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए और तकरीबन 250 स्कूल्स तक ये चीज पहुंची, और सारे के सारे सरकारी गर्ल्स स्कूल थे जहां पे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वो एक सोशल चेंज आता है। इसके बाद मैं आपका 3 मिनट का वक्त और लूंगा ज्यादा से ज्यादा। हमारे देश के कितने सारे सोल्जर्स हैं जो सरहद पर शहीद होते हैं, हम कितने के बारे में फील कर पाते हैं? क्या आप फील कर पाते हैं? फील कर पाते हैं आप? हाँ, कि वो किस चीज से गुजर रहे होंगे? क्या ये फील कर, आपको दुख लगता है कि हाँ अच्छा नहीं हुआ, जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन जो वो जिस चीज से गुजरते हैं वो चीज हम फील नहीं कर सकते। कहना झूठ होगा कि हाँ हम समझते हैं उनकी पीड़ा, गलत है, हम नहीं जानते हैं। स्टोरी टेलिंग में इसे कैसे इनोवेटिवली प्रेजेंट किया जाए? आप में से कितने लोग हैं जिनको हनुमंत थप्पा के बारे में मालूम है? आप कहते हैं कि आप सोल्जर्स के दुख दर्द को समझते हैं। यहां देखिए हॉल में 6 या 7 लोग हैं जो हनुमंत थप्पा के बारे में जानते हैं। हनुमंत थप्पा भारत के वो सोल्जर है, वो शहीद सोल्जर है जो सियाचिन में लड़ रहे थे -50 डिग्री सेंटीग्रेड में, वहां पर पहरा दे रहे थे हमारी सुरक्षा के लिए। और वहां बर्फ का तूफान आता है जिसे अवलांच कहते हैं। उस अवलांच में वो बर्फ के नीचे दबे, तकरीबन 50 फीट नीचे बर्फ के। कितने दिन आप जिंदा रह सकते हैं? कितने मिनट जिंदा रह सकते हैं? मुझे ये बताइए, जहां पर टेम्परेचर -50 डिग्री और आप 50 फीट नीचे हैं बर्फ के, कितनी देर जिंदा रह सकते हैं? एनीवन? फ्यू मिनट्स सर। आपको अभी 0 डिग्री में डाल दिया जाए उसमें हालत खराब हो जाएगी। 6 दिनों तक वो सर्वाइव किए थे। 6 days ही सर्वाइव्ड। एंड उसके बाद जब उनको वहां से रेस्क्यू किया गया तो वहां से उनको एम्स हॉस्पिटल दिल्ली लाया जाएगा, जहां पर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनका दुख, उनका दर्द क्या था जिस चीज से वो गुजरे, ये हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे हमारी कहानी के माध्यम से। लेकिन कहानी को भी हम लोगों को फील कराना चाहते थे कि आप उस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या आप ऐसा फील कर सकते हैं? यस।
3D साउंड इफेक्ट के जरिए हमने उस कहानी को प्रेजेंट किया था। यहाँ बड़े स्पीकर्स में शायद आपको वो समझ में नहीं आया, बिकॉज द शो इज कॉल्ड हेडफोन शो। वो सिर्फ आप हेडफोन पे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये 2 मिनट की लास्ट ऑडियो क्लिप आपके लिए प्ले करूंगा, विच इज अबाउट हनुमान थप्पा। मॉर्निंग नंबर 1 पर प्रवीण के साथ देश के नाम, ये है द हेडफोन शो। चिंता की कोई जरूरत नहीं है, कुछ लेवा तेरे को, कुछ लेवा। ओए ओए रुक जा, और यहाँ से मत कर। 21,147 फीट की ऊंचाई, टेम्परेचर -50 डिग्री, तारीख 3 फरवरी 2016 और जगह सियाचिन। भारतीय सेना के 10 जवान दुनिया के सबसे मुश्किल बैटल ग्राउंड पर देश की रक्षा के लिए खड़े थे। फरवरी की 3 तारीख को आए अवलांच में जमीन से 35 फीट की गहराई में 6 दिनों तक भूखे प्यासे दबे रहे जाबाज हनुमान थप्पा, और रेस्क्यू वर्क उस कठिन परिस्थिति में भी लगातार चलता रहा। जिंदा 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 है, ये जिंदा है, जिंदा है। चिंता की कोई जरूरत नहीं है, कुछ लेवा तेरे को, कुछ लेवा। ओए ओए जिंदा, आ जा। 6 दिन बर्फ के नीचे दबे होने के बाद भी हनुमान थप्पा ने अपना हौसला नहीं खोया, लेकिन लहू बहाकर सीमा पर अमन चैन का फूल खिलाया, प्राणों का बलिदान देकर भारत मां का मान बढ़ाया, भारत मां का मान बढ़ाया। ये हनुमान थप्पा की लाइफ की कहानी थी जो हमने 2 मिनटों में कंप्लीट करने की कोशिश करी। Okay, so I'll keep it short and crisp. Amazing, yeah, बहुत बहुत बढ़िया था. And Saima, what you said was really amazing. Actually, आप में से कितने यहाँ पे रेडियो से हैं? Anyone? रेडियो बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? हाँ, कम्युनिटी रेडियो. ओह, ग्रेट ग्रेट. तो यार देखो, ऐसा है, ये जो मीडियम है जिसमें आज आप लोग हो, एंड कम्युनिटी रेडियो मतलब आप दहलीज पे हो, यू विल यू नो, एफएम रेडियो, आप में से कईयों का ख्वाब होगा हम एफएम रेडियो में काम करेंगे, साउंड में काम करेंगे. एफएम है, सो कईयों का होगा प्राइवेट एफएम में काम करें, एंड यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. और अभी आजकल डिजिटल मीडियम भी बहुत है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड स्टफ. तो बड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि यार ये डिजिटल मीडियम में जाएं, रेडियो में रहें, फलाना ढिकाना, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो आई जस्ट वांट टू एक छोटी सी चीज़ से मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ. जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट थे. वो ये कहते थे फिल्म नहीं देखना है तुम्हें. तो मैंने करीब आई थिंक मैं 10 या 11 साल की उम्र में मैंने पहली फिल्म देखी. फिल्म देखने से पहले मेरे को मेरे मामा जी ने शोले की कैसेट ला के दी. शोले की कैसेट, उसमें पूरा ऑडियो था शोले का. फिल्म आज तक मैंने नहीं देखी. मैंने एक आध टीवी पे जो एक आध थोड़ी बहुत देख ली, बट मैंने कोई मूवी देखी नहीं थी. मैंने शोले का ऑडियो सुना और उसको सुनता रहा 100 बार, 200 बार, 300 बार. उसके बाद फिर करीब 15 साल बाद जब मैंने शोले देखी, शोले जैसी फिल्म देखी जब मैंने, तो मैंने कहा यार मजा नहीं आया यार, इतना नाम सुना है. क्योंकि जो दिमाग में जो छवियां थी ना, जो इमेजेस बनी, वो एक्चुअली जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो दे डिडंट डू जस्टिस. क्योंकि इट वाज सच अ ब्यूटिफुली टोल्ड स्टोरी. The characters were so amazing. The audio track was out of this world. That I felt that the visuals probably didn't do justice. So, हम सबको as radio professionals, this is the power, and that's what Saima has been saying, and that's what Praveen has displayed. हम इतनी perfect pictures बना सकते हैं
कि स्टीवन स्पीलबर्ग का बाप भी नहीं बना पाएगा वो पिक्चर्स और बिल्कुल सस्ते में. So when you are able to create powerful pictures, the choice is yours. किस तरीके के पिक्चर्स आप बनाना चाहते हो? Now, when it came to that, what I realized is that आज से 6 साल पहले when I started working with Fever, one of my boss called me one day. यार शरद, ये एक बंदे को हेल्प चाहिए, जरा देख ले यार क्या कर सकता है. So it was an American number. I called up that guy. I said, hello sir. He said, यार एक बंदा है, मेरा एक दोस्त है, वो गुड़गांव में रहता है, उसके ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी. मैंने कहा ठीक है. आई कॉल अप दैट गाय. ही सेड, यार देखो ड्राइवर वेंटिलेटर पे पड़ा है, एक महीने से मैं उसका पैसा वैसा दे रहा हूँ, अब मेरे पास भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पैसों की, अब आप कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? 6 साल पहले हमने फीवर में, ये 6-7 साल हो गए होंगे, हमने कभी इतना कोई CSR कुछ नहीं किया था. नेवर डन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. So I went up to Nitin, and that time Nitin was doing the show. मैंने नितिन को कहा, भाई ये देख, ये एक फोन आया है, ये एक बंदा है, ये स्टोरी है, तो एक काम कर, ये बोल दे. We call it mentions. मैंने कहा 1-2 बार अपने शो में बोल दे कि इस बंदे को हेल्प चाहिए. आगे देन रिचा उसके बाद शो कर रही थी, एंड देन द मॉर्निंग गाइस वर देयर. मैंने सबको बोल दे, एक मेंशन सारे कर दो. 2 दिन किए ये, इसको 2 दिन किया, उसके बाद मैं भूल गया. उसके बाद द गाय कॉल्ड मी अप अगेन फ्रॉम अमेरिका. ही सेड, यार थैंक यू सो मच, आपने बड़ा सही काम कर दिया. He was thanking me very profusely. मैंने क्या किया? कह रहे नहीं, वो करीब 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हमारे पास. So I was really shocked because हमारे लिए तो वो क्या रूटीन हो चुका है, एक आया मेंशन, हमने कर दिया, चलो ठीक है, बात कह दी. But the power of what it did, उसकी जो फील थी, you know what, when I felt कि यार इतना हम कुछ कर पाए, the driver didn't make it, तो ये लगा कि भाई what you can do in this medium, it's very, your responsibility is tremendous. एक घंटे में 4 बार आरजे आके बोलता है. अब वो कॉल एक्चुअली मेरा है, एंड वी डू इट अलॉन्ग विद द जॉक्स कि हम क्या कंटेंट देते हैं. तो ऐसा कंटेंट करें जिसमें गूज बम्प्स तो आए यार.